السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به انا اللیل وانا النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه انا اللیل وانا النہار۔ ناظرین کرام، میں آپ کے پیش خدمت رمضان کے متعلق اور دان و خیرات اور قرآن کریم پڑھنے کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کی ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو باغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو دھن دولت مال پراپرٹی دیتا ہے تو اس کے اندر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازتا ہے تو اس میں ہمیں دیکھ کر اپنے اندر جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حسد کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے اندر ہمیں حسد کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به انا اللیل وانا النہار، ورجل آتاہ اللہ مال فهو ينفقه انا اللیل وانا النہار۔ صرف دو آدمی ہی قابل رشک ہیں، ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، حافظ بن گیا، قرآن کو اچھی طرح سے یاد کر لیا اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ رواه البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5025 اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنے مسلم شریف کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 815۔ ناظرین کرام، ہمیں جن چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حسد کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کے اندر حسد کریں۔ مثال کے طور پر ہم قرآن پڑھیں اور علم کے اندر ہمیں حسد کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی نے اتنا علم حاصل کر لیا، ہمیں بھی اس طرح حاصل کرنا چاہیے، اس طرح۔ اور جو اللہ رب العالمین جس آدمی کو مال دولت دیتا ہے، پراپرٹی دیتا ہے، اس میں بھی اس آدمی کو اس میں گھمنڈ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو تم ہم سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں گے، اس طرح حسد کر سکتا ہے۔ نہ کہ ایک جس کو اللہ رب العالمین نے مال دولت نہیں دیا اور جس کو دیا، دینے والے شخص کو دیکھ کر جس کو اللہ رب العالمین نہیں دیا وہ آدمی جلتا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طرح ہمیں اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید عطا کی ہے اور اس مبارک مہینے میں جو قرآن کو پڑھتا ہے، چاہے عام دین میں ہو یا اس مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں ہو، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب دی ہے، اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، چاہے نماز میں پڑھے یا اسے عام حالت میں پڑھے، تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے اوپر سکونت، اطمینان ڈالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایک بہت قیمتی چیز عطا فرمایا ہے وہ اللہ رب العالمین کی قرآن کریم ہے، اللہ رب العالمین کتاب ہے، جو اگر ہم اس کتاب کو اس مبارک مہینے میں تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نزول کا رحمت فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور اس کو 2 رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اچانک ایک بادل آیا اور اس شخص کے اوپر چھا گیا، پھر وہ گھومنے اور اس کے قریب ہونے لگا، سامع نظام، جس سے اس کا گھوڑا ڈر کے مارے اچھلنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا واقعہ پیش کیا، ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تلک السکینۃ تنزلت للقرآن۔ ناظرین کرام، یہ باری تعالیٰ کی رحمت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر 5011 اور مسلم نے 795 نمبر حدیث کی ہے۔
इमाम नबी ने इस सकीना के माना के बारे में जिक्र किया है कि उसमें कई अक़वाल हैं। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा कौल यह है कि उसमें मुराद अल्लाह ताला की पैदा करदा वह चीज़ है जिसमें इत्मीनान, रहमत और फरिश्ते हैं। यानी कुरान मजीद की तिलावत के वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला की रहमत के साथ नाजिल होते हैं, जिससे तिलावत करने वाले को एक अजीब सी राहत महसूस होती है। नाज़रीन करम, हज़रत उसैद बिन हुफ़ैर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैं रात को नमाज में सूरह बकरा पढ़ रहा था और मेरा घोड़ा करीब ही बंधा हुआ था। अचानक घोड़ा बिदका तो मैं खामोश हो गया। जब मैं खामोश हुआ तो वह भी पुरसुकून हो गया। मैंने फिर क़िराअत शुरू की तो वह फिर बिदकने लगे। मैंने फिर क़िराअत शुरू की तो एक बार फिर बिदका और इधर मेरा बेटा यहया भी बैठा हुआ था। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं उसे कुचल ना दे। चुनांचे मैं सलाम फिरकर उसके पास आया और उसे दूर कर दिया, उस घोड़े से दूर कर दिया। मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई और देखता हूं कि एक छतरी सी और उसमें चिराग चमक रही है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, फिर छतरी नुमा चीज आसमान की तरफ गई, हत्ता कि मेरे नजर से ओझल हो गई। मैं उसे देख नहीं सका, मेरे आंखों से ओझल हो गई, मेरे निगाहों से आड़ हो गई। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब सुबह हुई तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना पूरा वाकया सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ इब्न हुफैर, तुम्हें अपनी क़िराअत जारी रखनी चाहिए थी। मैंने कहा, अल्लाह का रसूल, मुझे अपने बेटे पर तरस आ रहा था, इसलिए मैंने फिर सलाम फिर दिया। उसके बाद मैंने एक छतरी नुमा चीज देखी जिसमें चिराग चमक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिका वलौ क़रअत लअस्बहत यंज़ुरु अन्नासु इलैहा लततवारा मिनहुम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 5018, सही मुस्लिम हदीस नंबर 796। सामने काम या फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज के करीब आ गए थे और अगर क़िराअत जारी रखते तो सुबह के वक्त लोग भी उसे देख लेते और उनसे छुप सकते। सामने कराम, यहाँ थे कुरान मजीद के बाज़ फजाइल। अब सवाल यह होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को क्यों नाजिल फरमाया। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं, कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नाजिल फरमाया कि ताकि लोग उसको पढ़े और उसके अंदर गौर फिक्र करे, कुरान में गौर फिक्र करे, तदब्बुर तफक्कुर से काम ले, उसके बाद उस पर अमल करे। सामीन कराम, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह इरशाद बारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। वह लोग जिनको हमने किताब दी और उसकी तिलावत करते हैं जैसे कि उसकी तिलावत का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं, और जो शख्स उससे इनकार करेगा तो वह यकीन वैसे ही लोग खसारा पाने वाले हैं। सामने कराम, हक तिलावत का हक यह है कि कुरान मजीद को तिलावत करने का हक यह है कि कुरान मजीद को इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह यह आसमान से नाजिल हुआ, जिस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सिखलाया। अल्लाह ताला फरमाता, व कुरआन फर्रक़नाहु लितक़रअहु अलन नासि अला मक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। सूरह इस्रा आयत नंबर 106। और कुरान को हमने अज्जा में नाजिल किया ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर सुनाएं, और हमने उसे बतदरीज उतारा है। सामने कराम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वरत्तिल कुरान तरतीला, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4, कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़िए। लिहाजा कुरान मजीद को ठहर ठहर के और उसके हुरूफ को उनके मखरज से अदा करते हुए पढ़ना चाहिए, और उनके कलिमात के तलफ़ुज़ का बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि मखरज की तब्दीली से या तलफ़ुज़ में बिगाड़ पैदा होने से मानी में तब्दीली पैदा हो जाती है। सामने कराम, और यूँ कुरान मजीद की मानवी तहरीफ हो जाती है। खुसूसन नमाज में, खा फर्ज नमाज हो या नफल नमाज हो, कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ना चाहिए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके पढ़ने की तरतील फरमाई है, हमें साफ साफ से पढ़ने की तरकीब दिलाई है। और अल्लाह के हज़रत उम्म सलमा बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़त्तिउ क़िराअतहु यक़रउ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा यक़फ़ु अर्रहमानिर रहीम सुम्मा यक़फ़ु व कान यक़रउहा मालिक यौमिद्दीन। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने बयान किया है, और इमाम तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2927, और इमाम अबू दाऊद ने इसको जो नकल किया है हदीस नंबर 4001, और इमाम अलबानी इसको सही करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत में एक एक आयत अलग अलग करके पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते तो फिर वक्फा करते, यानी बीच में ठहर जाते, उसके बाद अर्रहमान रहीम पढ़ते, फिर वक्फा करते, और आप जब मालिक यौमिद्दीन पढ़ते
तो फिर बीच में ठहर जाते। नाज़रीन इकराम, इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ते, ठहर ठहर कर पढ़ते और रुक रुक कर पढ़ते। हज़रत अबू क़तादा बयान करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राअत कैसी थी, तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब खींच कर पढ़ते थे। फिर उन्हें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाह को खींचा, अर्रहमान को भी खींचा और अर्रहीम को भी खींचा। उनके यानी उन कलिमात में हुर्फ मद्दा को खूब लंबा किया। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपने बुखारी के अंदर नकल किया है, हदीस नंबर 5046। सामने करम, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत पुरतरन्नुम आवाज के साथ करनी चाहिए, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अज़िना अल्लाहु लिशैइन मा अज़िना लिनबिय्यिन यतग़न्ना बिल कुरान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी चीज को इस तरह तवज्जो से नहीं सुनता जैसा कि उसकी नबी की आवाज को तवज्जो से सुनता है जो कुरान मजीद को खुश इल्हान से पढ़ता है। सही बुखारी हदीस नंबर 5023 और इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया है, हदीस नंबर 792। इसका माना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश इल्हान थे और पुरतर्न आवाज में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। और इस हदीस में उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की फजीलत बयान की गई है। जो कुरान को खुश इल्हान से पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपने करीब करता है और उसको बड़ा अजर सवाब अता करता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ज़य्यनु अल कुरान बिअस्वातिकुम, अबू दाऊद हदीस नंबर 1468। इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया है। तुम कुरान को अपनी खूबसूरत आवाजों के साथ मुज़य्यन क्या करो। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, हमें कुरान को बेहतरीन आवाज में पढ़ना और तिलावत करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान मजीद को खुश इल्हान में अच्छे आवाज में पढ़ें। इसी तरह हमें कुरान मजीद को खुश उसलूब में और खुश इल्हान में पढ़ना चाहिए जिससे लोग सुने अच्छा लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इसे पसंद करे। कुरान को अच्छे आवाज में पढ़ना और खूब खुश इल्हान में खुश आवाज में पढ़ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करुल उलुल अलबाब, सूरह साद आयत नंबर 29। यह किताब बाबरकत है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि उसकी आयतों में गौर फिक्र करे और अक्लमंद उससे नसीहत हासिल करे। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, सूरह मुहम्मद आयत नंबर 24। क्या वह कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। सामने कराम, इसीलिए हमें कुरान मजीद को अच्छे खुश इल्हान में खुश आवाज में पढ़ना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला हिम्मत अफजाई बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।